अग्रवाल, गुप्ता, गर्ग, मित्तल क्या साइंस है इसके पीछे? अब घर वालों को प्रेशर है कि भाई तेरी शादी करनी है, तेरी उम्र भी हो रही है, सरप्राइज आपके लिए क्या हो गया? आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। अरे ये क्या होता है? फेल You become the CA. Yes, I the CA संगम अग्रवाल. everyone want कि you should be from English medium only basically because when you have to आपको लगता है जजमेंट होता है? 100% होता है। NIRC, ICAI में पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है। वोटिंग गेम है बेसिकली, टोटल अप्रोक्स 80,000 वोटर है आपके। If that's true तो स्लैश मार्किंग का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों है? स्लैशिंग कुछ नहीं होती, लेकिन जो डिमांड सप्लाई, यू विल सरप्राइज टू सी ऐसा इंडिया में हो रहा है। मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं अपने लैपटॉप में सिस्टम में तो अपने बड़े रिलेटिव के यहाँ पे अपने आर्टिकल शूट नहीं कर सकते। बहुत सारे मिथ हैं ये वाले जो मार्केट में है जो चलते रहते हैं। 6 महीने वो रहे, बिजनेस करे, पार्टी करे 6 महीने, यस इट इज अ फैक्ट। जॉब करनी है बिग 4 में लग जाए, आर्टिकलशिप करनी है बिग 4 में मिल जाए। One reason why people should not opt for CA as a career. 3 famous personalities you would recommend finance professional to know about. 3 countries you see have a bright future for finance professionals. 2 फोल्ड हो गए, 3 आइटम लग गए, तीसरा फोल्ड हो गया, 4th आइटम लग गया। तो जो हमारा सरनेम है वो तो कहीं हमारे फोरफादर हमें देते हैं बेसिकली, लेकिन जो आपका प्रीफिक्स होता है ये आपको अर्न करना पड़ता है लाइफ के अंदर। CA, one of the most popular career field है इंडिया में, but along with that, misconceptions भी revolve करते हैं इसके around. Today's episode is an answer to all of this. If you're a finance professional, today's episode is going to be a treat for you. If you're not a finance professional, you are going to get a lot of useful information जिसे आप flaunt भी कर सकते हो आपके circle में. I have got an honorary guest with me today. He's a junction of success and humbleness, an epicenter of knowledge, an expert at what he does, truly a people's person who has completed his CA, LLB, DISA, 18 years in practice, regional council member and former secretary of NIRC of ICAI, CA Sangam Agrawal. So to begin with, most important question. Now मैं wait कर रही थी आप कब आओगे and I can ask you this $1 billion question. So I was going through this list, ICI के members की and then NIRC के members की. So 75% ज्यादा भी हो सकते हैं, but at least 75% members के surnames थे अग्रवाल, गुप्ता, गर्ग, मित्तल। क्या I want to know क्या साइंस है इसके पीछे? इसकी वजह बहुत सिंपल लॉजिक है, बिकॉज यूनुस बनियास, अग्रवाल बनियास, दे जनरली ट्राई टू सेव मनी. Okay, and this is one of the course in which we have to spend only around 85,000 rupees in complete 5 year, and we get this kind of degree. If you go in any other course like MBBS, MBA, other, you have to spend 10-20 lakh rupees there. So people are more Agarwal families are more oriented toward this course because it has a less cost and more benefit. So if you do cost benefit analysis, so it is a much more good course basically. If you see chart accountants, you will find 90% chart accountant are Agrawals basically. Yes. 90%. So the team is selected out of them only basically. So obviously when majority member are Agrawals, so the member who come into the elections become the member of NIRC or become member of Central Council, they also become Agrawals basically. So this is a direct logic with the population with our chartered accountant basically. Wow, मैंने ना क्वेश्चन फ्रेम करते हुए भी नहीं सोचा था मुझे इतना साइंटिफिक और इतना क्वांटिटेटिव आंसर मिलेगा इसका। कोई है पर्सन जो जिसकी एक इनकम है, जो कोई इनकम जनरेट करता है, क्या हर किसी को सीए की नीड होती है? इफ नॉट, किसको सीए की नीड होती है? शायरी आज के डेट में कहूँ तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को सीए की नीड है। रीजन बिहाइंड, अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, एक पर्सन जिसकी 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम होती है, ही इज ओनली रिक्वायर्ड टू फाइल हिज आईटीआर, बट मैट इज नॉट फॉर आईटीआर. सीए इज रिक्वायर्ड टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो. कोई भी पर्सन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के कनेक्ट में है अगर, तो उसको ये हेल्प मिल सकती है कि ही कैन डिस्कस विद दिस फाइनेंशियल थिंग विद यू. फॉर एग्जांपल, आप कोई मेरे पास एक लेमैन आता है, मुझसे पूछता है सर मैं क्रेडिट कार्ड लूं या फिर क्रेडिट कार्ड लूं या मैं बैंक पे ओडी अकाउंट ओपन करूं या सीसी अकाउंट लूं बेसिकली. तो दैट टाइम आई विल टेल हिम दैट कि पहले तो बेटर ये कि आप जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको वाइजली इस्तेमाल करें.
आपको 45 डेज का क्रेडिट पीरियड मिला है आपको अगर, तो 45 डेज के एंड पे आप उसकी पेमेंट कर दो। डोंट वेट कि जितना मिनिमम अमाउंट है वही पे करना है आपको, जितना 100% अमाउंट है वो पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बट आपको फंड ज्यादा समय के लिए यूज करना है, आपको बिजनेस के लिए यूज करना है, तो दैट टाइम आप बैंक में एक सीसी लिमिट खोलें आप। उसमें क्या होगा, जो आपको लिमिट दी जाएगी, जितना पैसा आप यूज करेंगे उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि चार्ट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या सिर्फ जो एचएनआईस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हीं को है, बट मेरा आंसर है कि चार्ट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हर पर्सन को है अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए। और इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूट है एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर रहा है। इसमें आपने एक नाम सुना होगा, एफटीएल, फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पर आईसीआई इसमें उसका ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अंदर आईसीआई बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करता है जिसमें जनरल पब्लिक को अवेयर करता है अबाउट द देयर टैक्स प्लानिंग, अबाउट द फाइनेंस लिटरेसी। जैसे कि हमें अपना ओटीपी कहीं शेयर नहीं करना, या कि हमें जब कोई पॉलिसी लेनी है तो उसका हमें नॉट ओनली द सम एश्योर्ड, कितना उसमें पीएम जाएगा, कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट का है, कितना पार्ट इंश्योरेंस का है, वो सब चीजें प्रॉपर्ली हमें पता होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे एफटीएल के अंदर आता है, और वो हम लोग जनरल पब्लिक को गाइड करते हैं उसके अंदर बेसिकली। Who is a CA exactly? सो एक जो चार्ट अकाउंटेंट होता है, सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं, कॉमन पर्सन को कैसे टच करता है, उसकी आईटीआर फाइल करने से। कोई भी पर्सन कोई इनकम अर्न कर रहा है अगर, तो उसको अपने आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने उसको लिमिट दी है 2.5 लाख रुपीस की। Yes. अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपीस से ऊपर की है आपकी, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है आपके लिए। बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। इनकम टैक्स के रूल में वो ट्रांजेक्शन ले डाउन कर रखी है कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन आपने करी है अगर, तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट करा आपने सेविंग अकाउंट के अंदर, ऑल्दो इनकम नहीं है आपकी, पर आपने डिपॉजिट किया आपने, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ जी शहरी ने 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करे हैं। तो इनकम टैक्स पूछेगा, नोटिस भेजे कि आपने अपने आईटीआर क्यों फाइल नहीं करी, आपने ऐसी आपने फॉरेन ट्रेवल कराया, आपने अगर कोई आपने 2 लाख रुपए से ऊपर कुछ कैश में परचेज कराया आपने। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन जाती है कि आपने आपकी जो खर्चा है वो आपकी आय से अधिक है, तो उस केस में वो आपको नोटिस भेज सकता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम टाइमली अपनी आईटीआर फाइल करेंगे वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये तो एक फंक्शन हो गया आईटीआर का। सबसे ज्यादा लोग आईटीआर के लिए सीए से कनेक्ट में आते हैं, बट चार्ट अकाउंटेंट इज नॉट ओनली फॉर आईटीआर फाइलिंग, उसके अलावा पूरे बिजनेस को एडवाइस करना, पूरे बिजनेस को कंसल्ट करना कि उनका बिजनेस कैसे चलाना है उनको, उसके लिए उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना, उन सब में सीए का बहुत बड़ा रोल है। उसके अपार्ट फ्रॉम आपने देखा होगा ऑडिट्स, ऑडिट्स तो एक हमारा मेन डोमेन है। जो हमारा आईसीआई है वो हमें पावर देता है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम ऑडिट कर सकते हैं, एंड वी आर द ओनली सोल बॉडी इन इंडिया जो हम ऑडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, ये सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता बेसिकली। तो ये हमें एक स्टैच्यूरी पावर मिली हुई है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू आईसीआई, बट वी टुक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। हम इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ज्यादा लेते हैं बेसिक चीज को बेसिकली। तो ये एक ऑडिटिंग का पार्ट हो गया, टैक्सेशन पार्ट हो गया, बिजनेस कंसल्टिंग हो गया। अब बहुत सारे नए नए एवेन्यूज भी हमारी प्रैक्टिस में ऐड होते जा रहे हैं बेसिकली, लाइक फॉरेंसिक, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, वैल्यूएशन, ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें अब सीए के डोमेन में ऐड होती जा रही है। तो यू कैन से चार्ट अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर है आपको। मैं 2-3 नाम गिनवाता हूँ आपके, जैसे हमारे कुमार मंगलम बिरला, ये चार्ट अकाउंटेंट है, पूरे बिरला ग्रुप संभाल रखा है इन्होंने। अमन गुप्ता जो बोर्ड ग्रुप के सीईओ है, वो चार्ट अकाउंटेंट है बेसिकली आपके। जो हमारे पीयूष गोयल जी जो मिनिस्टर थे अभी, ही इज आल्सो चार्ट अकाउंटेंट। सुरेश प्रभु वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो चार्ट अकाउंटेंट है बेसिकली। इसके अलावा नैनालाल किडवई, Deepak Parekh from SDFC basically. There are so many chartered accountants, those who are working excel in their life basically. कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ना मिले आपको, बताऊं मैं आपको। सीए में जो मैं समझ रही हूँ फाइनेंस रिलेटेड एक बहुत वाइड स्कोप है, और सिर्फ ये आईटीआर के लिए नहीं है या सिर्फ ऑडिट्स के लिए नहीं है, देयर इज मच मोर टू इट। यस, आई वुड लाइक टू नो आपकी जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सीए कैसी थी, कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर करा आपने, एंड कभी कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स थे और एनीथिंग, हाउ वाज योर जर्नी, हाउ डिड यू बिकम अ सीए? ओके, तो शैरी, आई एम नॉट ए स्पेशल चाइल्ड बेसिकली, आई एम ए नॉर्मल, जैसे बाकी फैमिली में लोग होते हैं उसी तरह से मेरा भी आई ग्रोन अप। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड माय फादर गॉट एक्सपायर थ्रू एन रोड एक्सीडेंट, सो सारा बर्डन एकदम शिफ्ट हो गया जो के लेके ऑल टू मी। So that time I was in 12th class only. My exam was due after 6 months. So I Final boards. final boards, yes, final boards.
तो I gave my examination, I passed. Okay. So first decision I took कि I will do my further education in English only. Okay. Although from first to 12th if I am from Hindi medium, then I choose I will. It would be difficult, मुश्किल होगा definitely आप. Yeah, मुश्किल होगा, but that decision really very helped me for the difficulty of 6 to 8 months. Really changed my life. Because right now we all can understand, Shari, ki the role of Hindi medium is important, but when you go into the corporate world, Hindi is nowhere there basically. Everyone want कि you should be from English medium only basically, because when do you have to. आपको लगता है जजमेंट होता है basis? 100% होता है. मतलब आपका बात करने का तरीका, आपका काम को परफॉर्म करने का तरीका, वो दूसरा आदमी आपको जज करता है बेसिकली. आपके फ्रेंड सर्कल में आप हिंदी अच्छी आती है आपको, तो आप वहां पे ग्रो कर सकते हो. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर सकते बेसिकली आप. ये फैक्ट है. ऑल्दो मेरा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश एक माध्यम है अपनी बात को कहने का. आपकी बात कितनी इफेक्टिव है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. बट आप सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से. जो सोसाइटी बनी है वो उसी हिसाब से बनी है. अब फॉर एग्जांपल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के, दे ऑल आर इंग्लिश मीडियम. फॉर एग्जांपल टैली है आपका बिजी सॉफ्टवेयर है, आपका वेबटेल सॉफ्टवेयर है आपका. अब हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है तो आपको ऑप्शन देता है कि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सीए कर सकते हो. बट द चांसेस टू गेट सक्सेस फॉर दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट इज वेरी लेस. बिकॉज जब वो हिंदी मीडियम से सीए करने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा, अब उसको अकाउंटिंग करनी है, कुछ भी काम करना है, उसकी वो रिपोर्ट्स. अब फॉर एग्जांपल जो हम कंपनी सेक्टर में ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वो मैंडेटरी हमें इंग्लिश मीडियम में रिपोर्ट बनानी होती है बेसिकली. तो वो उससे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो मेरी लाइफ के अंदर जो 6-8 महीने मैंने सर्वाइव किए कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जाऊंगा, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा. आई टुक एडमिशन फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. वो भी मैंने पूरा इंग्लिश मीडियम में लिया. और सीए फाउंडेशन में होता, हमारे समय फाउंडेशन हुआ करती थी बेसिकली, तो फाउंडेशन में मैंने इंग्लिश मीडियम में लिया. और वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो जर्नी आज तक खत्म नहीं हुई बेसिकली. और इसकी इनिशियली बड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ी. देखो घर में फाइनेंस की दिक्कत थी, फादर की डेथ के बाद सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं था. तो वी हैव अ वेरी स्मॉल जनरल स्टोर, जिसमें मेरी मदर और मैं, मेरी बहन भी थी. हम तीनों मिलकर उसको स्टोर को चलाया करते थे. इससे लाइवलीहुड वी कैन अर्न. जब मैं 12th क्लास में था तो मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स को 9th 10th 11th के स्टूडेंट को कोचिंग दिया करता था, होम ट्यूशन जाके दिया करता था, जिससे कि जो मेरी फर्दर एजुकेशन है या घर की लाइवलीहुड है उसमें एक कंट्रीब्यूट कर पाऊं बेसिकली. तो मैं 12th क्लास से ही कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो गया था. थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया था बेसिकली. और जैसे सीए की जो भी फीस मैंने घर से आज तक कोई कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लिया था. दैट टाइम जो भी मैं फीस पे करनी होती थी, मैं अपने ही उससे क्या करता था. कितनी फीस होती थी उस टाइम? से आई थिंक मुझे याद है कि हमारी 5,000 फीस थी. तो पहले मैंने सीए फाउंडेशन, आज के फाउंडेशन बड़ी यूज करते हैं, उस समय उसको पीगन बोलते थे. ये हम कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 2005 की. 2004 की बेसिकली. क्योंकि 2004 में मैंने सीए पास की. सीए पास करते ही मैंने इमीडिएटली सीए में एडमिशन लिया. सीपीटी जो बोलते हैं, सीपीटी कह सकते हो बेसिकली आप. अब वो नाम भी चेंज हो गया है. एक्चुअली ये जो नाम होता है ये चेंज होता है टाइम टू टाइम बेसिकली. तो अर्लियर इट वाज फाउंडेशन, फिर वो P1 हुआ, फिर सीपीटी हुआ, दोबारा से फाउंडेशन हो गया बेसिकली. तो ऐसे तो मेरे टाइम पे एक तरह से फाउंडेशन था. फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर करा. उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया बेसिकली. उस समय उसको P2 कहते थे बेसिकली. तो P2 में मैंने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिए, तो मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाया बेसिकली. तो वो बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग रहा. मेरे को आज तक कभी भी फेल नहीं हुए, मतलब फर्स्ट टू 12th कभी फेल नहीं हुए, फाउंडेशन में कभी फेल नहीं हुए, बीकॉम में कभी फेल नहीं हुए. इंटरमीडिएट में पहली बार सेटबैक लगा कि अरे ये क्या होता है फेल. ये तो टैग आज तक कभी सुना ही नहीं कि फेल क्या होता है. तो तब पता लगा कि भैया नहीं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ने की, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सीए पढ़ने की बेसिकली. मतलब आपको सिर्फ इतना, आपको सोच समझ आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो दूसरे आदमी को समझा पाओ वो इम्पोर्टेंट है. आपको कोई फैक्ट पता है, कोई क्वेश्चन का आंसर पता है, नॉट इम्पोर्टेंट. आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो जिससे कि दूसरा आदमी को समझ आ पाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बेसिकली. तो वहाँ वो बिग बात समझी. और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप दोबारा से दिए, मेरे बोथ ग्रुप क्लियर हो गए. तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप क्लियर करे बेसिकली. हमारे यहाँ क्या होता है शहरी की, हमारे यहाँ ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है. मतलब जो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, दोनों 4-4 पेपर होते हैं बेसिकली. तो अगर आपने ग्रुप 1 पास कर लिया आपने, तो ग्रुप 2 नेक्स्ट टाइम आपको ग्रुप 2 देना है आपको सिर्फ. अगर आपने बोथ ग्रुप दिए, अगर बोथ ग्रुप पास हो गए तो आपका वो लेवल क्लियर हो गया आपका. और इसमें क्या होता है, आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं एक पेपर में पास होने के लिए आपको. और किसी पेपर में आपके 60 मार्क्स आते हैं तो दैट्स कॉल्ड एग्जामिशन. तो अगर आपको सपोज मैंने ग्रुप 1 दिया, उसमें एक पेपर में 60 मार्क्स आ गए, तो अगले अटेम्प्ट के अंदर मुझे वो सिंगल पेपर नहीं देना, क्योंकि मेरी उसमें एग्जामिशन है, मुझे रिमेनिंग 3 पेपर देने हैं बेसिकली मुझे. तो ऐसे इसमें होता है. तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट दिया, और देन आई क्लियर माय सीए इंटरमीडिएट इन सेकंड अटेम्प्ट बेसिकली. देन आई जॉइन माय आर्टिकलशिप. हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट के बाद ही हुआ करती थी बेसिकली, P2 के बाद बेसिकली. तो आई जॉइन माय आर्टिकलशिप. आई डिड माय आर्टिकल फ्रॉम ठाकुर वेदनाथ अय्यर एंड कंपनी.
तो वो 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट आसपास रहते थे, तो वहां से इंस्पिरेशन आता था कि वो बड़े अच्छे हैं, अच्छे से काम करते हैं, मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है, सब उनको सीए साहब बोलते हैं, अच्छी गाड़ी है उनके पास, तो लगता था कि अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं सीए करने के बाद। तो वहीं से कहीं ना कहीं इनिशिएशन आया कि हाँ जी, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है। ओके तो मैंने वहां पे आर्टिकलशिप करी, बहुत अच्छी फर्म थी, बहुत काम सीखने को मिला, क्योंकि जो हमारे सीए करिकुलम के अंदर हमें 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी होती है, किसी सीए में काम के अंदर काम करना, तभी हमें आगे फाइनल में एडमिशन मिलता है बेसिकली। तो वहां मैंने आर्टिकलशिप करी, उसके बाद मैंने एग्जाम दिए अपने, साथ में पैरेलल मेरे एग्जाम बीकॉम के चल रहे थे, फर्स्ट सेकंड Okay. थर्ड ईयर ओके बीकॉम ऑनर्स पैरेलल चल रही थी। बट क्या होता है कि अगर आपने सीए का कोर्स कर रहे हो तो बीकॉम के एग्जाम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं या मटेरियल नहीं होते, मतलब क्या होता है वो आप कर ही लेते हो, कर कि यहाँ से एडवांस लेवल पे स्टडी कर रहे हो सब चीजों की बेसिकली आप, तो उसको तो आप बड़े आराम से क्लियर कर लेते हो, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। तो मेरे बीकॉम में कभी किसी पेपर में बैक नहीं आई, सब पेपर मैंने काफी अच्छे नंबर से क्लियर करे। इवन आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स 74 मार्क्स आउट ऑफ 75 इन सेट्स। जो हमारा स्टेट्स का पेपर था बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर के अंदर, तो मेरे 74 मार्क्स थे 75 में से बेसिकली। तो वो मैंने पूरा कॉलेज टॉप किया था एक तरह से। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सीए ओनली, क्योंकि वो सब पढ़ाई मैंने सीए में कर रखी थी, वहां थोड़ी सी रिवाइज करी तो काम चल गया बेसिकली। तो फिर देन सीए फाइनल के एग्जाम दिए बेसिकली। तो सीए फाइनल में वही दोबारा सेटबैक कि हमारा क्लियर नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, दोबारा लगा ये क्या हुआ। ऑल्दो मार्क्स ठीक थे मतलब, बट लेकिन वही जो कंडीशन होती है ग्रुप क्लियर, हाँ पूरा ग्रुप किया मैंने, हर बार बहुत ग्रुप दिए हैं, अगर सिंगल सिंगल ग्रुप नहीं दिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके पास, बट मुझे नहीं दूंगा तो बहुत ग्रुप दूंगा, तो सिंगल ग्रुप नहीं दूंगा। ओके अदरवाइज क्या होता है कि देखो आप आधे सीए रह गए, फिर आधे सीए के लिए दोबारा मेहनत करो तो नहीं आता। हाँ तो और हमारे टाइम पे क्या होता था शरी कि हमें सारे पेपर इकट्ठे देने होते थे। तो मंडे को पेपर स्टार्ट हुए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होगी, देन 8वां पेपर आपका दोबारा मंडे को हो गया एक तरह से, या ट्यूसडे को हो गया। तो लगातार पेपर हुआ करते थे। आज की डेट में तो क्या है, बच्चों को प्रिविलेज है, जो नए बच्चे सीए कर रहे हैं उनको प्रिविलेज है, उनको एक दिन का ब्रेक मिलता है। ओके आज एक पेपर होगा, टुमारो इज हॉलीडे, देन डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट पेपर बेसिकली। तो वो हमारे टाइम पे नहीं होता था। तो हमारे टाइम पे आप मतलब जो टेस्टिंग होती थी, सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग नहीं हो रही, आपकी मेमोरी की टेस्टिंग भी हो रही है, कि उन 6-8 घंटे के अंदर की पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मतलब 2 से 5 का एग्जाम हो रहा है, आप 6 बजे घर पहुंच रहे हो, आप उसके बाद थोड़ा रिलैक्स भी करना है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, सोना भी है, अगेन 2 बजे सेंटर पे दोबारा पहुंचना पेपर देने के लिए। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो टेस्टिंग हो रही है, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट की भी टेस्टिंग हो रही है, वो आपकी मेमोरी की भी टेस्टिंग हो रही है, वो आपकी स्किल की भी टेस्टिंग हो रही है कि हाँ आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो सब चीजों को बेसिकली। मैंने जून 2009 में एग्जाम दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हो पाया, दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हो पाए। मार्क्स ठीक थे पेपर के अंदर, बट वो एग्रीगेट कंडीशन पूरी नहीं हो पाई कि 50% मार्क्स मेरे हो। और एक पेपर हमारा तो माफा का पेपर हुआ करता था, उसमें 58 मार्क्स थे, अगर 60 होते तो वो भी एग्जामिशन आ जाता, तो बाई चांस वो भी नहीं हो पाई। देन मैंने और हार्ड वर्क किया। एक्चुअली होता क्या है कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन जो हमें करनी होती है ना, ये अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप करनी होती है। तो आप 9-10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो आर्टिकलशिप के लिए, वहां से 8 बजे निकल रहे हो, फिर शाम को घर पे आ रहे हो, तो आपको रिलैक्स करने का टाइम तो मिलता ही नहीं है, फिर दोबारा आके आप पढ़ाई में लग गए। ऑफिस के बाद आपको कोचिंग भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो ये सारे फैक्टर ना बहुत ज्यादा वो है, मतलब कि उनकी मैनेजमेंट ही मेन चीज है बेसिकली। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है जनरली एग्जाम के साथ ही आपका एग्जाम अटेम्प्ट होता है बेसिकली। तो डूरिंग आर्टिकलशिप भी देना पड़ता है फर्स्ट अटेम्प्ट आपको। तो वो एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर 2 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो डूरिंग आर्टिकलशिप होता है आपका। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों अटेम्प्ट मेरे आर्टिकलशिप के दौरान थे बेसिकली, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप में मेरी आर्टिकलशिप पूरी हुई थी 2010 के अंदर जाके बेसिकली, अब मई 10 के अंदर। तो मैंने नवंबर 2009 में एग्जाम दिया, तो फिर मेरे बोथ ग्रुप क्लियर हो गए बेसिकली उसके अंदर। तो मेरा जो रिजल्ट आया था वो 17 जैन 2010 को रिजल्ट आया था, उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है बेसिकली। हाँ, तो बर्थडे वाले दिन ही मेरा सीए भी क्लियर हुई थी। You become the CA. Yes, I the was the CA संगम अग्रवाल. yes. तो जो टाइटल था जिसके लिए ड्रीम था कि सीए नाम के आगे लगे बेसिकली, वो शायरी क्या होता है कि जो हमारा सरनेम है वो तो कहीं हमारे फोर फादर हमें देते हैं बेसिकली, लेकिन जो आपका प्रीफिक्स होता है ये आपको अर्न करना पड़ता है लाइफ के अंदर, जो आप अपनी मेहनत से करते हो, जिसका आपको लाइफ टाइम प्राउड रहता है बेसिकली कि आपने कुछ अचीव करा, अपनी मेहनत से अचीव करा वैसे। तो वो चीज की डिजायर थी, तो मेरी नवंबर 2009 में पूरी हो गई थी। तो ये जर्नी रही सीए करने की, बड़े अप एंड डाउन रहे इसके अंदर। इसमें मैं जब मैं आर्टिकलशिप में था तो कुछ अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी किया करता था, क्योंकि आईटीआर फाइल करना, सेल टैक्स की रिटर्न भरना, जैसे कि क्या होता है आर्टिकल में आपको जो स्टाइपेंड मिलता है बड़ा लिमिटेड स्टाइपेंड मिलता है आपको, 2-3 हजार मुश्किल से मिलते हैं। तो उसमें आपका ट्रेवलिंग का खर्चा, फूडिंग का खर्चा वो पूरा नहीं हो पाता था। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम इंटर्नशिप करते हैं काइंड ऑफ, तो हम प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए काम किया करते थे, मतलब
Okay. पोस्ट ऑफिस आवर्स, Okay. पढ़ाई भी करनी है, उनके लिए काम भी करना है, वो सब चीज मैनेज करनी है बेसिकली। बहुत इंस्पिरेशनल रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। एक तो सीए जैसा कोर्स कंप्लीट करना जो लोगों के लिए उनको लगता है पहाड़ जैसी चीज है, उसके साथ यू वर जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम ऑल्सो, फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल करने के लिए, एंड देन एज यू मेंशन हिंदी से इंग्लिश में चेंज होना और उसके बाद इतना अच्छा स्कोर करना। सो दिस इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। एंड ओके, सो आफ्टर दिस सीए बनने के बाद NIRC तक कैसे? मैंने एक चीज सुनी है, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड कि NIRC ICAI में पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं है टू बिकम अ मेंबर। हाउ डिड यू गेट इनटू इट? या अगर कोई भी ऐसा ड्रीम करता है कि मैं भी NIRC का मेंबर बनूं, एंड देन यू हेल्ड अ पोस्ट आल्सो, यू वर द सेक्रेटरी एज वेल, तो हाउ वाज योर जर्नी? और कोई भी पर्सन कैसे पहुंच सकता है वहां तक? बिल्कुल शरीर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है किसी भी सीए के लिए NIRC में पहुंचना है, सेंट्रल काउंसिल में पहुंचना, क्योंकि सीए का कोर्स अपने आप में मांगता है डेडिकेशन मांगता है कि आप एक काम को कंटिन्यूस करते रहो, यू डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। सेम चीज यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर NIRC में पहुंचना है, आपको अगर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या इंटरेस्ट? आपका लोगों से मिलने का इंटरेस्ट, लोगों से बात करने का इंटरेस्ट, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट, ये सारे यूएसपी आप पे होने चाहिए। ये मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जब मैं सीए फाइनल के अंदर था, तो मैं विश्वास नगर हमारी सीए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, उसमें लाइब्रेरी है, वहां में पढ़ने जाया करता था। तो वहां पे जो सब लोग थे बेसिकली, वहां पे जो और स्टूडेंट आया करते थे, तो मैं उनकी हेल्प किया करता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कोई क्वेश्चन लेके आया तो मैं अपना क्वेश्चन को छोड़ के उसकी पहले हेल्प किया करता था। मेरा पता कि उसके चक्कर में मेरी भी रिवीजन हो रही है, उसकी हेल्प हो रही है। कोई पर्सन आपके पास आया है अगर, तो कुछ एक उससे आया, मतलब कुछ ना कुछ एक थॉट से आया कि आई कैन हेल्प देम एंड गॉड मेक मी एट दिस लेवल कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो भी वो मेरे पास आया है। तो ये एक थॉट था मेरे अंदर। तो मैं अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प किया करता था। तो वहां से एक स्टूडेंट का एक जो ग्रुप है एक तरह से वो बिल्डअप हुआ, या 50 लोग मुझे जानने लगे बेसिकली। कोई संगम अग्रवाल है, कोई दिक्कत है तो उससे पूछ सकते हो, चाहे वो सीए इंटर का है या सीए फाइनल का है। तो आई कैन, बिकॉज क्या था, आई टोल्ड यू आई एम कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो क्या होता था कि हमारे घर पे स्टोर था, तो घर पे ना स्टडी नहीं हो पाती थी, तो स्टडी करने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरी की फीस बहुत होती थी। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारी एक लाइब्रेरी दे रखी थी पढ़ने, तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाया करता था। कि आर्टिकल के बाद जैसे 6 बजे छुट्टी हुई वहां से, तो सीधा 7 बजे या 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया, 10 साढ़े 10 तक वहां पढ़ा, उसके बाद घर चला गया। वैसे एक बार आप घर पहुंच जाओ तो घर के बहुत सारे काम में बिजी हो जाते हो, फिर वो टेम्परामेंट नहीं बन पाता स्टडी का। आपने मूवी देखी होगी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें क्या है, जो बच्चा होता है बेसिकली वो केवीसी में जाता है, वहां पे एक बहुत हैंडसम मनी जीतता है, वो सब उसकी लाइफ से एक्सपीरियंस से आती है उसको चीजें। उसने कोई चीटिंग नहीं की होती, पर उसने डे 1 से अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड की होती है कि वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसकी लाइफ के पार्ट है एक तरह से। Exactly. तो ऐसे ही क्या है, मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं NIRC में मेरा मन था जाने का, वो जो इनिशिएशन आया, वो इनिशिएशन कैसे आया कि जब मैंने आर्टिकलशिप करी अपनी टीवीए से, तो हमारी फर्म से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, सीनियर्स थे हमारे, जो इस फील्ड में आगे गए हैं। So we have around 3 past president of ICA from TV only. Oh, okay. तो उनको जो हम देखते हैं, उनका इंस्पिरेशन देखते हैं, तो उससे कहने की आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ ये लोग जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं बेसिकली। तो वहां से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, और इनिशिएशन का बैकअप था वो मेरी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के फ्रेंड्स हैं सपोर्ट करने वाले, मैं कुछ लोग ही जानता हूँ, मैं बात करूंगा तो बात मेरी बढ़ेगी। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारी एक 15 डेज की ट्रेनिंग होती है GMCS। ओके, ये ड्यूरिंग सीए होता है उसके बाद पोस्ट? हाँ, जैसे सीए फाइनल आपने पास कर लिया, आपको मेंबरशिप नंबर लेने से पहले 15 दिन की ट्रेनिंग करनी है। तो वही ट्रेनिंग मेरी हुई। तो उस ट्रेनिंग में क्या होता है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है काइंड ऑफ, उसमें सब लोग सबसे 15 डेज के अंदर अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन होता है। सपोज आपको जो नेगोशिएबल स्किल है उस पर डिस्कस होता है, इंटरव्यू स्किल्स पे डिस्कस होता है, आपके कम्युनिकेशन में डिस्कस होता है, आपको कैसे इंटरव्यू रिप्लाई करना है उस पर डिस्कस होगा। ऐसे बहुत अलग चीज सिखाई जाती है सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग। तो उसमें एक सर आके सब क्लास में सबसे वो वन बाय वन सब पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है क्या करना है। तो दैट टाइम 2010 में जब मैंने बस सीए पास ही की थी, उस समय कुछ नहीं पता था नया से का। तो सर आए, मुझसे पूछते आपको क्या करना है लाइफ के अंदर। आई टोल्ड सर आई वांट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब मुझे प्रेसिडेंट बनना है ICAI का। तो दैट टाइम एवरीवन सरप्राइज, इस छोटे से लड़के को अभी नौकरी लगी नहीं है इसकी अभी, और इसको प्रेसिडेंट बनना है, क्या क्या इसके पीछे बेसिक कुछ बेस ही नहीं है इसके, तो कैसे बनना है इसको। बट दैट टाइम आई थॉट, क्योंकि मेरी वो आर्टिकलशिप वैसे ग्रुपिंग वैसे हुई थी कि मैंने देखे हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर या प्रेसिडेंट फ्रॉम हमारी फर्म से, तो वो कहीं ना कहीं इच्छा थी, ड्रीम था कि उसे हम पूरा करेंगे बेसिकली। तो वहां से मेरा वो स्टार्ट हुआ। इसलिए मैं बाकी मेंबर्स के लिए जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं,
तो मतलब दिस इज नॉट अ जर्नी ऑफ 1 नाइट और 2 नाइट बेसिकली, इट टेक टाइम, इट विल टेक 3 to 5 years कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हो। देखो जब हम इस पोजीशन पे आते हैं, वी आर नॉट कम हियर टू एंजॉय दिस पोजीशन, वी आर हियर टू सर्व। हम यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हैं। आज भी एवरेज में 8 to 10 मेंबर कम स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ डेली बेसिस पे। उनकी कोई क्वेरी होती है, उनकी कोई प्रॉब्लम आईसीआई की, उनकी कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आई ट्राई टू हेल्प देम बेसिकली। तो अगर आपका ऐसा नेचर है, आप इतना टाइम डिवोट करते हो, आपको लोगों से बात करने में मजा आता है, उनकी हेल्प करने में अच्छा लगता है आपको, तो आपके लिए फील्ड बड़ा ओपन है बेसिकली, तो बड़े आराम से आ सकते हो। क्योंकि देखो जब आपका हेल्पिंग नेचर होगा तो लोग खुद जुड़ेंगे आपके साथ बेसिकली। और यहाँ क्या है, वोटिंग गेम है बेसिकली। टोटल अप्रोक्स 80,000 वोटर है आपके नॉर्दर्न रीजन के अंदर, उसमें से अराउंड 50% वोटिंग होती है। 47 लोग वोट डालेंगे, आपको 2,000 वोट से जीतने के लिए आप जीत के आ जाओगे बेसिकली। ऑल्दो कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, बट लेकिन बाय पासिंग ऑफ टाइम आप चीजों को बड़े आराम से कर सकते हो। आप लोगों को जोड़ो अपने साथ, आप लोगों को जोड़ो, मल्टीपल चीजें जोड़ सकते हो, आपके हेल्पिंग नेचर से जोड़ सकते हो, आप कुछ काम करते हो, काम से शेयर कर सकते हो, उनके कहीं हेल्प कर सकते हो, इस तरह से आप लोगों को जोड़ सकते हो अपने साथ, तो बड़े आराम से आप कोई भी इलेक्शन जीत सकते हो बेसिकली। ओके, सो इलेक्शन में नॉमिनेट होने के लिए कोई प्रोसीजर होता है, या अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो सीधा रजिस्टर कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है, कोई अलग से कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको ये क्वालिफिकेशन या कोई एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी? बस क्या है, 2 लेवल होते हैं, एक होता है रीजनल काउंसिल, एक होता है सेंटर काउंसिल। राइट नाउ आई एम द मेंबर ऑफ रीजनल काउंसिल। सेंटर काउंसिल के एक है कि आप फेलो मेंबर होने चाहिए। फेलो का मतलब होता है कि आप सीए करके आपको 5 साल हो जाए आपको, उसके बाद ही आप सेंटर काउंसिल कंटेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज रीजनल काउंसिल कोई लिमिट नहीं। तो 2018 के इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा भी क्लियर नहीं हुआ इलेक्शन 2018 वाला, मैं हार गया इलेक्शन में। बट लेकिन ज्यादा मार्जिन है, थोड़े मार्जिन से हारा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं संगम हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा मार्जिन है, इसको देखते हैं कैसे पूरा करते हैं। तो 2018 के बाद फिर 2021 में दोबारा इलेक्शन हुए, तो 2021 में मैं दोबारा कंटेस्ट करा। तो उस समय में टोटल 13 लोग होते हैं बेसिकली जो चूज होते हैं, तो मैंने 5वें नंबर पे चूज हुआ बेसिकली। तो मतलब एक अच्छे मार्जिन से मैं जीत के आया बेसिकली इलेक्शन को। बेसिकली दिसंबर 2024 के अंदर दोबारा इलेक्शन है, तो इस बार मैं दोबारा से एनआईआरसी का इलेक्शन ही रिपीट करूंगा बेसिकली। एंड यू आर होपफुल? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने जैसे देखा है कुछ हमारे जो फील्ड होते हैं ना जिसमें पढ़ाई की बोलते बहुत ज्यादा जरूरत है, सीए हो गया या मेडिकल हो गया, तो जो आप सोशल स्किल्स की बात कर रहे हो, राइट, लोग जनरली इससे कट ऑफ कर लेते हैं खुद को। एंड आई सिंस यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक आप एग्री करोगे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीए की सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, लोगों से बात करना, सोशल स्किल्स डेवलप करना, ये सब तो क्या इतना जरूरी चीजें नहीं है। बट आई थिंक यहाँ से आई कैन अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू ग्रो इन एनी करियर, यू नीड टू हैव सोशल स्किल्स। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी और एक बहुत पॉपुलर एजुकेशनल चैनल पे था, उसमें उन्होंने बोला कि दे वर डिस्कसिंग अबाउट द पावर्स और बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ सीए। तो 3 चीजें बोली उन्होंने। पहला कि अगर आपके नाम के आगे सीए लग गया तो अगर कोई आपसे एज में भी बड़ा है वो आपको सर कह के बुलाएगा। दूसरा कि हर कोई, आप कहीं भी जाओ, कोई भी इंसान है, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, और पैसे की तो आप सोच रहे मत क्योंकि आप बहुत कमाने वाले हैं। कि ये तीनों बातें सही है? दिस इज फैक्ट। जब आपने आगे के सीए लगाए तो हर पर्सन का आपकी तरफ देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है बिल्कुल। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखता है, बहुत नॉलेज से देखता है कि हाँ जी ये पर्सन को बहुत नॉलेज है, ठीक है, इससे मैं कुछ आई कैन गेट इट, मैं इनसे बात करूंगा, डेलिब्रेट करूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज पास ऑन हो सकती है। तो वो चीज कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या, जो हमारा इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट है, बिकॉज जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICAI, इट वाज सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट वाज मेड इन 1 जुलाई 1949। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले ICAI का एक्ट बना बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी उस चीज की। तो रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड 75 ईयर ऑफ ICAI। तो जो उसकी लेगेसी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे में ट्रांसफर होती है। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने IIM अहमदाबाद से MBA किया, तो आपने तो 2 साल MBA किया ना, लेकिन जो 50 साल से बना हुआ इंस्टीट्यूट, जो उसकी लेगेसी है, जो उसकी गुडविल है, वो आपको कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हुई। आपने देखा होगा जितने भी ये जो IIM अहमदाबाद से लोग करते हैं, वो अपने रिज्यूम के ऊपर IIM अहमदाबाद का लोगो यूज करते हैं बेसिकली। जितने भी SRSCC से पास आउट होते हैं वो अपना लोगो यूज करते हैं उसका। वो तो 2 साल 3 साल रहे बेसिकली, बट जो कॉलेज की लेगेसी है, उस यूनिवर्सिटी की लेगेसी है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आती है उस चीज से। सेम चीज है। तो जो सीए का मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जो उसकी गुडविल है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो रही है मेरे साथ बेसिकली। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है कि नाम सीए के आगे नाम सीए लगते ही लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से सर जी मिनिमम या सीए साहब, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन वर्ड है बेसिकली। दूसरा बात करते हैं पैसे की। देखो जिस आदमी ने सीए पास कर ली तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है,
सीए पास कर ली, वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकता है। सीए पास कर ली कि उसके स्किल्स अच्छे हैं तभी वो सीए पास कर पाया है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, ही इज गुड। तो पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाने इनमें से कोई एक ही स्किल चाहिए, तीनों स्किल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जिस आदमी में तीनों स्किल होंगे वो तो फिर उसको तो पैसे की लिमिट ही नहीं कोई भी बेसिकली। तो क्या ये सही है कि अगर किसी ने भी सीए क्लियर कर लिया, कोई सीए बन गया है, तो वो एक बहुत हैंडसम इनकम अर्न करेगा बड़े आराम से, बहुत इजीली? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट आईसीआई है, उसमें कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मिनिमम 9 लाख रुपए इसका पैकेज हमारे इंस्टीट्यूट कहता है कि जो कंपनी 9 लाख से कम ऑफर करती है उसको हम लोग एनरोल ही नहीं करते। सिर्फ वही कंपनी आएगी जिसका मिनिमम 9 लाख रुपए का पैकेज होगा। तो आप ये बात मान सकते हैं कि कोई भी सीए स्टूडेंट, सीए जो सीए बनते हैं उसको मिनिमम 9 लाख रुपए का अश्योरेंस है। कैंपस में आएगा उसको 9 लाख रुपए की जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट हमारी जो प्लेसमेंट 100% के आसपास की होती है ऑलमोस्ट। Awesome. हाँ, ये तो हो गया वो लोग जो जॉब पे जाना चाहते हैं। साथ में एक सेगमेंट है जो प्रैक्टिस पे आना चाहता है बेसिकली। तो प्रैक्टिस मतलब ऑल्दो ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है कि हम जॉब में जाएं, प्रैक्टिस में जाएं, बट उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो खुल जाते हैं। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनते ही उस पर एक अथॉरिटी आगे साइन करने की, जो रिलायंस जैसी कंपनी को भी साइन कर सकता है जिसकी 5 लाख करोड़ की वर्थ है, उसको साइन कर सकता है सीए बनते ही। तो उसकी पावर और मेरी पावर, जो मुझसे जो 40 ईयर सीए है उसकी पावर भी सेम है बेसिकली। तो आपके पास इतनी बड़ी स्टैच्यूरी पावर आ गई जो आप काम कर सकते हो। बाकी आपकी कैपेबिलिटी से आप कितना काम करो, कितना पैसा कमाओ, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे सीए भी हैं जो साल के 10-12 लाख रुपए कमा पाते हैं, ऐसे सीए भी हैं जो साल के 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। कि फिर उन स्किल्स का यूटिलाइजेशन है, उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो बेसिकली आप। 10-12 तक लिमिट रह गए आप, जिन्होंने अपने स्किल को ज्यादा अच्छे से यूज किया वो 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। Exactly. हमारे कैंपस के अंदर 50-60 लाख का पैकेज बड़े आराम से मिलता है जो रैंक होल्डर्स होते हैं। Okay. ये पैकेज बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ पे। हाँ, So that means कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, yes. एंडलेस है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है। yes. ये भी एश्योरेंस नहीं आप कह सकते मैं सीए बन गया तो मैं तो करोड़ में ही कमाऊं। yes, yes. जनरल परसेप्शन है कि बहुत मुश्किल है सीए बनना। एक अटेम्प्ट में किसी का क्लियर हो गया तो आप तो ब्रिलियंट हो, जनरली नहीं होता है। इतना डिफिकल्ट क्यों है सीए का कोर्स कंप्लीट करना? मैं इसको ना एक लाइव एग्जांपल से बताना चाहूंगा शायरी आपको, इफ यू अलाउ मी। दिस इज नोट ऑफ 500 रुपीस, ठीक है। सब मुझे एक अटेम्प्ट लग गया तो मैंने एक फोल्ड हो गया, ठीक है। मेरे को 2 अटेम्प्ट लग गए, 2 फोल्ड हो गए, 3 अटेम्प्ट लग गए, तीसरा फोल्ड हो गया, 4th अटेम्प्ट लग गया तो फोल्ड हो गया। तो अब इस नोट को लेना चाहोगे आप? हाँ, नोट की वैल्यू तो उतनी ही है। यस, दिस इज द क्रक्स। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सीए तब भी 500 रुपए का ये, और जब मेरे को 2-3 अटेम्प्ट लग गए इसके अंदर तब भी इसकी वर्थ 500 रुपए की है। दिस थिंग आई वांट टू कम्युनिकेट थ्रू दिस एग्जांपल कि आपको कितने अटेम्प्ट लगते हैं ये मैटर नहीं करता। आप सीए हैं तो आपकी वर्थ और वैल्यू इक्वल है आपकी, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराओ आपने, मल्टीपल अटेम्प्ट में किया हो, कोई मैटर नहीं करती बात ये आपकी। तो पहले अटेम्प्ट पे आया बेसिकली में। अब आता कि उतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज सीए मांगता है सिस्टमैटिक स्टडी। आपको एज कम्पेयर टू अदर कोर्स यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए। यहाँ पे वो फन पार्ट मिसिंग है, आई टोटली एग्री। यहाँ पे क्लासरूम मिसिंग है। जैसे मुझे बीकॉमर्स करनी है किसी कॉलेज से तो आई हैव टू गो कॉलेज, वहां पे एक सिस्टमैटिक स्टडी होगी कि मैं 10 बजे क्लास में पहुंचा, 4-5 लेक्चर लिए, उसके बाद कैंटीन में गया, घूमने फिरने गया, फिर घर पहुंचा। ये क्या है? कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है आपका। आपने सीए में एडमिशन लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरा, घर पे किताबें आ गई, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इट्स अप टू यू कि आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। आप इंस्टीट्यूट डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आते, तो वो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर मिसिंग होता है यहाँ पे। दिस इज अ थिंग जिस चक्कर हम कहते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं पास करने में, बिकॉज ये क्लासरूम कोर्स नहीं है आपका, ये कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है आपका। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेट होते हुए ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम पास करना है आपको। ये डिफरेंस है इस कोर्स के अंदर और एमबीए के कोर्स के अंदर या बाकी एलएलबी के कोर्स के अंदर, लॉ के कोर्स के अंदर जो डिफरेंस है। चीजें बहुत एडवांस है, गाइडेंस वाला पार्ट अवेलेबल है। अभी वीडियो एंड ऑल वीडियो देख रहे हैं, उनको गाइडेंस मिलेगी इस चीज को लेकर कि क्या करना है लाइफ के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। पहले सब चीजें बहुत मिसिंग थी बेसिकली। तो इसलिए मुश्किल नहीं है कोर्स, सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आई कैन टेक ए गारंटी कि अगर सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, आपने अपने गोल्स बनाए हैं, उन गोल्स को अचीव करो टाइम टू टाइम, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, पास हो ही जाओगे आप बेसिकली। इफ दैट्स ट्रू तो स्लैश मार्किंग का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों है स्पेसिफिकली सीए इंडस्ट्री में? हाँ। देखो एक्चुअली ये ना मिथ है, एक्चुअली बहुत बड़ा बताऊं आपको। मैं आपको पहले 2 बात बताता हूँ आपको। एक तो क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूट आरटीआई के अंदर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर।
किसी भी स्टूडेंट को अपनी कॉपी चाहिए अगर, तो वो आरटीआई फाइल करके या फिर प्रोसीजर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फाइल करके वो कॉपी मंगा सकता है अपनी। ओके। डू यू थिंक कि किसी स्टूडेंट की कॉपी आई, उस पे उसके मार्क्स थे 50, मैंने उसे काट के 38 कर दिया, उसको फेल कर दिया? पॉसिबल हो सकता है ऐसा? आप कोर्ट में चैलेंज कर दोगे कि सर देखो स्टूडेंट मुझे फेल कर दिया, मैंने 50 मार्क्स 38 कर दिया? एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली सिलेक्शन कुछ नहीं होती, लेकिन जो डिमांड सप्लाई, देखो अब हमें डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना है कि चार्ट अकाउंटिंग की डिमांड, देखो क्या होगा, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी बेसिकली। तो उसको मैच करने की डिमांड सप्लाई को जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो क्वेश्चन पेपर बनता है बेसिकली उस पर फोकस करता है कि वो इजी बनेगा या मॉडरेट बनेगा या वो हार्ड बनेगा बेसिकली, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नंबर्स के मैटर पे कोई नहीं कर सकता, बताऊं मैं आपको। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोली है कि जो आईसीआई का एग्जाम कंडक्टिंग का प्रोसेस है इट इज ए सुपीरियर। जितने बाकी और इंस्टीट्यूट है उनको आईसीआई के पास आना चाहिए और सीखना चाहिए कि आईसीआई कैसे एग्जाम कंडक्ट करता है। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा ना तो आपको मतलब यू विल सरप्राइज टू सी कि ऐसा इंडिया में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जितने भी सीए स्टूडेंट्स अपना पेपर लिखते हैं बेसिकली, आफ्टर राइटिंग देयर पेपर उनके सारे आंसर शीट की स्कैनिंग होती है सिस्टम में। ओके। स्कैनिंग होने के बाद एक सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनबिल्ट है उसके अंदर। तो एक एग्जामिनर, सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप में सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पेपर का लॉगिन करूंगा, मेरे आईज के रेटिना को कैमरा कैच करेगा, ठीक है, उसके बाद मेरा पेपर ओपन होगा, उसके बाद मैं सिस्टम में उसकी चेकिंग करूंगा। कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती यहाँ पे, और थ्रू सॉफ्टवेयर चेकिंग होती है, जिससे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अनमार्क नहीं रह सकता, सबके मार्क्स देने के, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया 0 मार्क्स देंगे, और कोई क्वेश्चन अनचेक नहीं रह सकता बेसिकली। और उसके बाद सपोज एक अकाउंट्स का पेपर है, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने फिक्स किया कि मिनिमम 14 मिनट लगने हैं, और किसी एग्जाम ने जल्दी चेक कर दिया उसको, तो वो उसकी शीट वहां से क्रैश होकर किसी और एग्जामिनर के पास जाएगी रीचेक होने के लिए। ये भी उसमें फीचर है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो दिस इज ए होल प्रूफ प्रोसेस। आप देखो हमारे हर बार 4 से 5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें 0.001% बच्चे का रिजल्ट चेंज होता है रीचेकिंग के अंदर। जो बच्चे अप्लाई करते हैं सर रीचेकिंग कर दो, मतलब 2 बच्चे 3 बच्चे हार्डली, 5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी मच रोबस्ट। तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं, ना स्लैशिंग का स्कोप है ना कोई एरर का स्कोप है इसके अंदर बेसिकली। आप क्या एक रीजन देखो, जैसे आप इतने लोगों से कनेक्टेड हो, स्टूडेंट्स भी हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, आपको एक क्या रीजन लगता है कि जनरली सीए स्टूडेंट्स के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि ये इतना एविडेंट हम किसी और प्रोफेशन में नहीं सुनते हैं स्टूडेंट्स से? देखो क्या होता है, वंस आई गॉट फेल आई नीड सम एक्सक्यूजेस कि मैं क्यों हुआ ऐसा, मैं तो पेपर बहुत अच्छा लिख के आया था, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, मुझे क्यों फेल कर दिया गया बेसिकली। कोई ऐसा डिफरेंस आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जिस तरह से एग्जाम्स देते हैं और आईसीआई की जो रिक्वायरमेंट है फॉर आंसर्स वो कहीं पर मैच नहीं हो रही और स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल जरूर होता है ऐसा। 2-3 चीजें इसके अंदर। एक, स्टेप बाय चेकिंग। हमारा इंस्टीट्यूट ना आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देता है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, अगर उसके स्टेप्स के मार्क्स होंगे कि इस वाले स्टेप के हाफ मार्क्स हैं, इस वाले स्टेप के 1 मार्क्स है, इसके 2 मार्क्स है, इसके 3 मार्क्स है, इसके नोट लिखना है आपको एक्सप्लेनेशन, उसके 2 मार्क्स है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि हमने पूरा क्वेश्चन करा, हमने अगर सपोज करो इसमें एक वर्किंग नोट ऐड करना है कि आपको सीजीआर की कैलकुलेशन करनी है, वो वर्किंग नोट बना के करनी है। आपने वो कैलकुलेशन से कैलकुलेटर पे कर दी और सीधा नंबर लिख दिया आपने वो वर्किंग नहीं लिखी उसके अंदर, तब 2 मार्क्स तो गायब हो गए वहां से आप। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में बहुत सारे स्टेप मिस कर देते हैं। एक तो उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है मेरी आपके, अगर उसमें 5 क्वेश्चन करने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके आएंगे बेसिकली, पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पास होने लायक तो अटेम्प्ट कर दिया, बाकी का रहने दो, फिर हो नहीं पाएगा ना उसके अंदर, क्योंकि 20 में से 20 मार्क्स तो मिलने नहीं आपको क्वेश्चन के अंदर। तो इट इज ऑलवेज से दैट कि अगर 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेटर देन 4 क्वेश्चन को करेक्टली करने से ज्यादा, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे आपको, तो आपके पास होने चांस ज्यादा है बेसिकली। जो स्टूडेंट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा चाहे वो कंप्लीट नहीं हुए, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, इंस्टेड ऑफ वो स्टूडेंट जो 4 क्वेश्चन करेगा उसके 4 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे, उसके मार्क्स कम आएंगे आपके। तो इसलिए पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई कॉलेज तो है नहीं कि मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं आपके, सेमेस्टर 1, 2, 3 हो रहे हैं, सीधा आपने सीए में एडमिशन लिया, 12 महीने तक एग्जाम होंगे, आप एग्जाम देने पहुंच गए, सरप्राइज आपके लिए क्या हो गया सॉरी बेसिकली, क्योंकि आपने 12th तक एग्जाम दिए हैं, वहां पे आपको लिखने की बहुत हैबिट होती है, क्योंकि उससे पहले आपके यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, और सेमेस्टर भी होते हैं, प्री बोर्ड भी होता है, बहुत सारी चीज चलती रहती है आपकी। उसके ठीक 12 महीने बाद एकदम से एग्जाम देने पहुंचे आप, आपको पूरा पेपर लिखना है 100 मार्क्स का, वो भी सीए का फाउंडेशन का, और हैबिट ही नहीं है आपको लिखने की उसकी, तो हैबिट टूट गई आपकी, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो वो स्टूडेंट जो सीए का एग्जाम लिख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि वो मॉक टेस्ट दें, पहले पेपर देने से पहले एक ही पेपर कम से कम 5 बार पेपर दें,
जो पहले पेपर आ चुके हैं उन्हीं को लिख के प्रैक्टिस करें टाइम मैनेजमेंट की, तो जिससे कि उनका कम से कम मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट हो पाए। एक रीजन और है शायरी इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे सीए स्टूडेंट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप अपना एग्जाम देते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो सीए के कोर्स को फुल फ्लैश फोकस होकर नहीं कर रहे होते बेसिकली। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल लिया कि 10 से 8 की मेरी आर्टिकलशिप है, 9 बजे घर पहुंचा, अब मुझे पढ़ने का टाइम कब मिला प्रॉपर्ली, उसको मैनेज करना है। या किसी स्टूडेंट को 2-3 अटेम्प्ट लग गए, उसकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, अब वो घर पे है, अब घर वालों को प्रेशर है कि भाई तेरी शादी करनी है, तेरी उम्र भी हो रही है, और उसके अलावा क्या करना है, मतलब अब तो घर पे कोई कमाने वाले तो कुछ पैसे कमाओ, सेटल होना स्टार्ट हो जाओ, कुछ काम कर लो। कई लोग एग्जाम तो पास कर लेंगे, कहीं जॉब कर लेते हैं, अकाउंटेंट की कुछ कर लेते हैं, तो उससे उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है बेसिकली। तो अगर 4 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, तो मान चलो 2-2.5 लाख स्टूडेंट जो बिल्कुल सीरियस होकर अटेम्प्ट देते हैं, बाकी तो पूरा सीरियस होकर अटेम्प्ट नहीं दे रहे होते, दे आर बिजी समवेयर, मतलब 2 दिन की स्टडी करी पेपर देने चले गए, उससे काम नहीं चलेगा। पूरा 3-4 महीने की सिस्टमेटिक स्टडी चाहिए आपको एग्जाम पास करने के लिए। Okay. ये एक मेन रीजन होता है, काफी स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है बट देन फाइनल्स नहीं होता। Yes, yes. ओके, अब मैं आर्टिकलशिप से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। जनरली लोगों के स्टूडेंट्स के माइंड में होता है क्वेश्चंस, राइट, एंड आई थिंक यू वुड बी द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस। तो आर्टिकलशिप में जो एक कॉमन चीजें हम लोगों में सुनते हैं, एक तो बहुत पॉपुलर है कि सीएस को स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, बहुत कम दिया जाता है, इट्स लाइक मिनिमल होता है, राइट। तो आईसीएआई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम स्टाइपेंड सेट कर रखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, अलोंग विद दैट, क्या आईसीएआई में वर्क स्कोप को लेकर कि क्या काम कराया जाएगा स्टूडेंट से और कितने आवर्स तक काम कराया जाएगा, उसकी भी कोई गाइडलाइन सेट है? एक्चुअली शायरी हमारे यहाँ सब कुछ मतलब एज पर रेगुलेशन का पार्ट है, जो हमारा एक्ट है बेसिकली सब चीज उसमें लिखी हुई है। उसमें इवन घंटे भी लिखे हुए हैं कि आपको मिनिमम 35 घंटे काम कराना है और मैक्सिमम 45 घंटे काम कराना है। आपको 45 घंटे से ऊपर काम नहीं करा सकते एक पर वीक, एक आर्टिकल से आप, ठीक है। अब क्या काम कराना है ये चीज डिफाइन नहीं है, जो उसके ऑफिस में जिस तरह का नेचर वर्क होगा, चाहे टैक्स का है, ऑडिट का है, कंसल्टिंग का है, आरओसी का है, जो काम होगा वो काम करेगा बेसिकली। तो काम डिफाइन है कि क्या काम कराना है, बट बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए एम्प्लॉयर, हमारी ये एक होता है कि उसको हर तरह का काम सिखाया जाए आर्टिकल को, जिससे कि वो उसको एग्जाम में भी हेल्प करे। दूसरा, उसको जब उसको हर तरह का काम उसको आएगा तभी वो फ्यूचर में डिसाइड कर पाएगा उसको किस वाली फील्ड में जाना है। तो ये एक इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग है सारे प्रिंसिपल्स की कि उसको हर तरह का काम सिखाया जाए, जहां उसका इंटरेस्ट है उस वाले एरिया में उसको काम सिखाया जाए। कोई आर्टिकल मेरे पास आता है, सर मुझे आपके अंदर आर्टिकल करनी है, मुझे इनकम टैक्स में इंटरेस्ट है, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको हायर करूंगा और उसको इनकम टैक्स का काम कराऊंगा। जैसे कि जहां उसको, और जिसको नहीं पता कि सर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आई ट्राई कि पहले उसको 1 साल ऑडिट कराऊंगा, 1 साल जीएसटी कराऊंगा, 1 साल इनकम टैक्स कराऊंगा, जिससे कि जहां उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां फिर आगे वो आफ्टर सीए ग्रो कर सकता है बेसिकली, जीएस में रहेगा बेसिकली। तो मतलब ऐसा कुछ भी अनजस्टिफिकेशन नहीं है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। आपने जिस स्टाइपेंड की बात करी, शरी आप देखो कि आप किसी एक शानदार ऑफिस में जा रहे हो, मतलब ठीक है 2-3 करोड़ का ऑफिस है वो, वहां पे आपको एक ऐसा बंदा, 2 ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जो डे इन डे आउट आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, आपने कोई भी काम करा, आपको दिक्कत है, आप उससे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, या फिर इस बैलेंस शीट में ये मैच नहीं हो रहा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब देखो कितना बड़ा आपका वैल्यू एडिशन है वहां पे आपका। तो स्टाइपेंड जस्ट टू मीट योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जो आपको घर से ऑफिस आने का खर्चा हो रहा है या छोटा मोटा खर्चा हो रहा है, उसको मीट आउट करने के लिए वो स्टाइपेंड दिया जाता है। इट इज नॉट योर सैलरी, यू डोंट हैव क्वालिफाइड टू वर्क देयर। तो ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, इंटर्नशिप का पार्ट है आपका वैसे ना। तो इसलिए उस अमाउंट को इतना रखा गया है कि जो आर्टिकल है उसको भी उसके डे टू डे खर्चे निकलते रहे, और जो प्रिंसिपल है उसको भी कोई बर्डन फील ना हो उसको हायर करने हैं बेसिकली। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया। ऑल्दो इसको अभी लास्ट ईयर इसको डबल भी किया गया। आज के डेट में मिनिमम स्टाइपेंड आपका 4,000 फर्स्ट ईयर, 5,000 सेकंड ईयर, 6,000 थर्ड ईयर, ये स्टाइपेंड। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि ये भी कम है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के अंदर कोई भी 4,000 रुपए नहीं देता। मेरे अंदर खुद जो आर्टिकल है मैं उसको 8,000 रुपए देता हूँ स्टाइपेंड बेसिकली। तो ये जो स्टाइपेंड है मिनिमम स्टाइपेंड है, ओवर अब तो दे ही सकते हैं, और मैक्सिमम लोग ओवर एंड अबव भी देते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो एज प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई देते हैं बेसिकली। तो ये मिनिमम स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई है, इससे ऊपर आप दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये होता है बेसिकली। आपने ऐसा देखा है कि कुछ जो सीएस होते हैं, मैं ऑब्वियसली सबका नहीं कहूंगी, बट काफी सारे जो सीएस होते हैं कहीं ना कहीं आर्टिकल से एज फुल टाइम एम्प्लॉयज भी काम करा रहे होते हैं, एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय काम करा रहे होते हैं बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक आर्टिकल की और उसकी प्रिंसिपल की। मतलब जो सीए उसको हम प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल और जो आर्टिकल है उसके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जब काम ज्यादा है तो
ज्यादा आवर्स भी काम कर रहा है, जब काम कम है तो जल्दी भी जा रहा है अपने स्टडी के लिए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसके बीच में। तो उस केस में फिर इंस्टीट्यूट को कोई वो ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 35 घंटे काम करे, 38 घंटे काम करे, 42 घंटे काम करे या 46 घंटे काम करे, तो ऐसा नहीं है। वो उसकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर चीज से बेसिकली। बट अगर ऐसा है कि कोई एम्प्लॉय उसको 45 घंटे से ऊपर काम करा रहा है तो इंस्टीट्यूट इज देयर, ही कैन कंप्लेन टू इंस्टीट्यूट, आर्टिकल कंप्लेन कर सकता है प्रिंसिपल की। एज पर रेगुलेशन मैक्सिमम 45 घंटे करना होता है, बट ये मुझे मोर देन 45 घंटे करवा रहे हैं काम, तो 45 घंटे भी कब है जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं। वैसे 35 घंटे अलाउड है कि आपको 35 घंटे काम कराना है, बट लेकिन आपका कुछ ऐसे, जैसे आपका जुलाई का मंथ है आईटीआर फाइलिंग का, सितंबर का मंथ है ऑडिट का, तो उस समय आप उसको 45 घंटे भी काम करा सकते हैं पर वीक बेसिकली। तो उस केस में उसको अलाउ किया गया है बेसिकली। तो वो उसके आपस से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक दूसरे से कैसे उनकी ट्रेनिंग बनती है। बाकी इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है उनकी ट्रेनिंग को क्रिएट करने में या ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करने में बेसिकली। ओके, एक कंसर्न जो आज व्हिच इज राइजिंग, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन ऑफ सीएज इन अ फैमिली, राइट? तो बहुत ज्यादा जो सेकंड जनरेशन ऑफ सीएज होते हैं वो अपनी ही फर्म्स में या अपने ही लोगों के अंडर काम करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, वो शो करते हैं, बट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, नो वन नोस। नहीं ऐसा नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। एज पर अवर इंस्टीट्यूट क्या होता है, आप अपने बड़े रिलेटिव के यहाँ पे अपनी आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। सपोज माई फादर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जाम्पल एंड आई वांट टू डू आर्टिकलशिप, आई कैन नॉट डू आर्टिकलशिप अंडर माई फादर बेसिकली, बिकॉज क्या होगा, मेरी इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएगी वहां पे। तो इसलिए मैं उनके अंदर आर्टिकलशिप नहीं कर सकता। मुझे किसी नॉन ब्लड रिलेटिव के यहाँ आर्टिकलशिप करनी होगी, तभी इंडिपेंडेंस आ पाएगी काम को लेकर बेसिकली। तो इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता ऐसे किसी अपने इतने क्लोज रिलेटिव की आर्टिकलशिप करना। तो ये भी एक मिथ है, बताऊं आपको, बहुत सारे मिथ हैं ये वाले जो मार्केट में है जो चलते रहते हैं। एज एन मैन वी गेट अ टाइम वी क्लैरिफाई दैट, अदरवाइज थिंग्स गोस बेसिकली। ऐसा नहीं है। और दूसरा तो क्या होता है, अब मैं आप इसको रिवर्स लेके चलता हूँ। सपोज कोई ऐसा केस हुआ भी कि एक फादर ने अपने बेटे को अपने अंदर आर्टिकलशिप दे दी, उस केस में क्या होगा, वो क्या कोशिश करेगा, एक फादर हमेशा क्या चाहेगा कि इसको तो मैक्सिमम काम आए ना, जो काम में दूसरे आर्टिकल को 12 महीने में कराऊं उसको 6 महीने में इतना काम कराऊं बेसिकली। में हमेशा उल्टा होता है, शायद प्रैक्टिकली आप देखो ना उल्टा होता है। अगर मेरा बेटा होगा बेसिकली, आई ट्राई की उसको मैं इफ एंड आउट सब कुछ काम आना चाहिए उसको, मतलब 1 साल में इतना काम सीख जाए जितना 5 साल में काम सीखे बेसिकली वो। तो प्रैक्टिकली उल्टा होता है। हमें थ्योरेटिकली लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस पर क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, उसके फादर की ना, कि वो उसको वॉच कर रहे हैं। हम प्रिंसिपल की बात को तो इग्नोर कर सकते हैं, फादर की बात को कैसे इग्नोर कर देंगे। आप देखो ना, तो घर में वही जाना है, कल को उनकी गाइडेंस पे सब कुछ आगे करना है, तो वहां तो और ज्यादा कंट्रोल है बेसिकली। वो ज्यादा और स्ट्रेच आवर्स में काम करते हैं, 45 घंटे 65 घंटे काम करते हैं वो, तो कहूँ मैं आपको, जो अगर किसी अपने नोन क्या काम कर रहे हैं अगर वो बेसिकली। ओके, आई वांट टू नो एग्जैक्टली, अगर मैंने लेट्स सपोज मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, मेरे नाम के आगे सीए लग गया है, नाउ वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मेरे आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इफ आई वांट टू गो फॉर अ जॉब और अ प्राइवेट प्रैक्टिस? ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सो शरी, इसमें क्या है, जैसे आपने सीए पास कर लिया आपने, ओके, उसके बाद अगर जॉब में जाने का मन है आपका, तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको कैंपस प्लेसमेंट का ऑफर देता है बेसिकली। ओके, साल में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट होता है आपका, और 99 जितने बच्चे पास करते हैं सब लोग कैंपस में जरूर अपीयर होते हैं बेसिकली। ओके, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि हमारा कैंपस प्लेसमेंट का रेशियो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होती है, और सब अच्छी कंपनीज आती है उसके अंदर, लिस्टेड कंपनीज आती है, टॉप 20 कंपनीज आती है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां उस कंपनी में आते हैं। तो एवरीवन ट्राई टू गेट अ चांस देयर, ठीक है। तो जिनको भी जॉब में जाना है तो उनको तो बेफिक्र है, बताऊं मैं आपको ना, वो तो अपना कैंपस में जाएंगे, उनका कैंपस प्लेसमेंट वहां से हो जाएगा, ठीक है। समटाइम हो सकता है कि जहां उनका सिलेक्शन हो रहा है वो कंपनी का प्रोफाइल उनको पसंद ना हो, तो देन दे हैव टू गो ऑफ कैंपस बेसिकली। तो ऑफ कैंपस से बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, देयर एन नंबर ऑफ कंसल्टेंट, दे आर लुकिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली। कि आज के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज ए बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर देखा जा रहा है बेसिकली। तो बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सोच भी नहीं सकते, बट दे आर डूइंग दैट। आई जस्ट कमिंग फ्रॉम वन कॉन्फ्रेंस बेसिकली, तो वहां पे वन पर्सन वर्किंग विद टीसीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट। जो ईआरपी डेवलप होते हैं उसके अंदर फाइनेंस वाले पार्ट को कैसे चेक किया जाएगा, क्या क्या वो काम करे चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली। तो आज के डेट में जो ऑडिटिंग है, टैक्सेशन तक लिमिटेड नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर आर सो नंबर ऑफ एवेन्यूज जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। तो पहले बात की जॉब की, तो वन हो गया कैंपस आपका। मैं इसमें एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, इस कैंपस प्लेसमेंट में क्या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि आप कितनी कंपनीज में अपीयर कर सकते हो? वो सब चीजें हैं बेसिकली, प्रॉपर एक रोड मैप बना हुआ है उसका प्रॉपर, मतलब कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है, कंपनी ने आपको चूज करा है, ठीक है। एक कंपनी मैक्सिमम सपोज को जितने उनको रिक्वायरमेंट है उससे 20 टाइम एक्स्ट्रा और
10 टाइम एक्स्ट्रा कैंडिडेट चूज कर सकती है। फिर जो कैंडिडेट है बेसिकली वो मैक्सिमम 3 कंपनी को ऑप्शन दे सकता है इंटरव्यू के लिए। सपोज एक कैंडिडेट को 5 कंपनी ने चूज किया है तो उसको 3 कंपनी सिलेक्ट करनी है उसमें से कि 3 कंपनी है इनको मुझे चूज करना है। बट लेकिन ऐसे पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि Okay. कंपनी कैसे चूज करेगी और जो सीए न्यू सीए वो कैसे चूज करेगा किन कंपनीज को, उसके बेस पे उसका इंटरव्यू होगा, देन Okay. उसको ऑफर लेटर मिलेगा बेसिकली। Okay. वो पूरा पैरामीटर है उस चीज का। Okay. तो अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं बेसिकली हम, तो जॉब के लिए तो पहले कैंपस है, आराम से हो जाएगा, ऑफ कैंपस है वहां भी आराम से हो जाएगा बेसिकली, आपका कोई दिक्कत नहीं है जॉब मिलने में। Okay. अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में क्या है, या तो आप सेकंड जनरेशन हो, वहां आपको बहुत बेनिफिट है प्रैक्टिस में आना, या आप में इतने पेशेंस है कि आप 2-3 साल तक थोड़ा मैनेज कर सकते हो अपने फाइनेंस को। क्योंकि जब तक डे वन से आपके काम कैसे आएगा, तब तक अपने काम के बारे में आप लोगों को बताओगे या फैमिली को बताओगे नहीं आप, तब तक काम जनरेट नहीं होगा। सबसे पहला काम आपके पास जो आता है वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर के रेफरेंस के थ्रू आता है बेसिकली। सपोज आपके फादर की कोई शॉप है, उनका कोई नेबर है, आपने उसको बताया कि मेरा बेटा सीए बन गया, तो हो सकता है उसकी फाइल आपके पास आ जाए टैक्स के लिए, ऑडिट के लिए, किसी काम के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट होगा। Okay. फिर क्या होता है आज के डेट में जितने यंग मेंबर्स बन रहे हैं, दे ऑल आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि अगर वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे दे विल नॉट गो वेरी हाई। तो उसके क्या कहते हैं पहली पार्टनरशिप बिल्डअप कर लेते हैं वो। Okay. यंग सीएस आ रहे हैं आज के डेट में, Okay. 3 लोगों की पार्टनरशिप बनाई, पार्टनरशिप बनाती है, आपकी यूनिटी दिखती है, बड़ी फर्म दिखती है आपकी। 3 साल की आपने आर्टिकलशिप करी होती है, तो कुछ आपके क्लाइंटेल ऑलरेडी बिल्डअप हो जाते हैं 3 साल की आर्टिकलशिप में, क्योंकि आप उस समय ऑफिस का काम भी करते हैं, कुछ प्राइवेट काम भी करते हैं आप। तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आने के बाद फुल टाइम आपको मिल जाता है करने के लिए आपको, तो वहां से मिलता है। कुछ रिलेटिव की रेफरेंस हो गई, कुछ आपका हार्डवर्क हो गया, आपकी नेटवर्किंग हो गई। तो 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है प्रैक्टिस में आने के बाद। स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि आप जितना जॉब में कमा सकते हैं उतना ही कमा पा रहे हो, लेकिन आफ्टर 4 और 5 ईयर जितना जॉब में कमा रहे हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस में कमा रहे हो। बताओ मैं आपको, ये लेवल आपका अचीव हो जाता है बड़े आराम से आपका। Okay. हाँ, बट आप अगर हार्ड वर्किंग है तो कोई आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा आईसीए इंस्टीट्यूट है बहुत कुछ करता है हमारे मेंबर स्टूडेंट्स के लिए। ये तो हो गया एंट्री लेवल कैंपस। इसके बाद एक्सपीरियंस लोगों के लिए कैंपस कराता है इंस्टीट्यूट हमारा, कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए अलग से कैंपस होता है हमारा Okay. जो कराता है साल में एक बार। उसके अलावा एक ओवरसीज कैंपस होता है इंस्टीट्यूट का, उसमें जितनी भी इंडिया के बाहर की कंपनीज है वो उस कैंपस में आती है, और एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अगर उनको ओवरसीज जाके काम करना है। एक कैंपस और होता है फॉर वुमेन, दोज हु वांट टू वर्क फ्रॉम होम बेसिकली, जो घर से काम करना चाहती हैं, Okay. उनके लिए अलग से कैंपस होता है फीमेल्स के लिए। हाँ, तो ऐसे करके इंस्टीट्यूट ना मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प करता है आपको, जिससे कि आप अपने करियर में सेटल हो जाओ बेसिकली। ऑल दो इंस्टीट्यूट का रोल नहीं है, इंस्टीट्यूट का रोल है अकाउंटिंग रेगुलेटर। जो हमारा आईसीआई है उसका मेन रोल है एज ए अकाउंटिंग रेगुलेटर, बट उसका काम है अपने मेंबर्स को कैंपस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो उस कैंपस अपॉर्चुनिटी के अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऐड होती रहती है ईयर टू ईयर, कि कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसको सेटल किया जाए बेसिकली। Okay. ये मेन रहता है इसके अंदर। आपने इसमें एक चीज बोली कि ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी Yes. प्रोवाइड कराते हैं। Yes. आई हैव हर्ड दिस, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि जो सीए की डिग्री है इंडिया की वो बाहर वैलिड नहीं है, तो हाउ कैन अ सीए वर्क ओवरसीज? बताता हूँ बिल्कुल आपको। देखो, एक तो क्या होता है, जॉब करना होता है बेसिकली। एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, यूएई है, सिंगापुर है, यूएस। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में काम कर सकता हूँ, लेकिन जहां को साइन करने होंगे एज ए सीए, तब देखा जाएगा ना कि मैं उस कंट्री की मेरे पास वो है नहीं है, उस कंट्री की जो उसका सीए इंस्टीट्यूट है वहां की मेंबरशिप है नहीं है मेरे पास। तो जॉब करने में कहीं भी बनाई नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे सीएस काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात करते हैं प्रैक्टिस करने की। अगर मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को यूएस में जाकर प्रैक्टिस करनी है अगर, तो एक उसमें क्या हमारा टाई अप उनके साथ, एक एमओयू साइन हो रखा है, कुछ बेसिक एग्जाम हमें अपियर होना पड़ेगा, उसके बाद मैं यूएस की प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। कुछ हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हमारी मेंबरशिप के बेस पर अपनी मेंबरशिप दे रखी है। फॉर एग्जांपल आपका सीपीए आइलैंड, जो सीपीए आइलैंड बोलते हैं कि अगर आपने इंडिया सीए कर रखा है तो आपको कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ड अपॉन दैट आप हमारे यहाँ पे सीपीए आइलैंड की डिग्री ले सकते हो, बेस्ड अपॉन इंडियन सीए आप फिर आइलैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने यहाँ पर एक बार क्लियर कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ की डिग्री मिल जाएगी, बट अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाई कर। उसकी एनुअल फीस है वो पे करनी पड़ेगी, आपको मिल Okay. जाएगी। तो ऐसी बहुत कंट्री हमारा एमओयू साइन हो रखा है। उस Okay. एमओयू के लिए हमें एक बेसिक एग्जाम देना पड़ता है, 1 या 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, बाकी सब एग्जाम हमारे लिए एग्जाम है। वो देखिए फिर हमें वहां की भी सीओपी मिल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए उस कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर से हमारा क्या टाई अप है कि अगर कोई भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने अगर सिंगापुर रहता है अगर वो, तो उसको वहां पे वो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है सिंगापुर इंस्टीट्यूट का बेसिकली, ऑटोमेटिकली बिना एग्जाम दिए बेसिकली। सिर्फ वहाँ पे वर्क कर कर। तो 6 महीने वो रहे, बिजनेस करे, पार्टी करे 6 महीने। 6 महीने वो अगर सिंगापुर में है, अगर उसके वीजा पे 6 महीने का सिंगापुर का रेजिडेंस है अगर, तो वो इज एलिजिबल टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम सिंगापुर ओनली। तो ये टाइप, ये दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूट। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इसकी
गुडविल है कि सारे इंस्टीट्यूट दे वांट टू गिव प्रेफरेंस टू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली, Yeah. बिकॉज दे नो कि दे आर वेरी मच हार्ड वर्किंग। वो अगर उनकी कंट्री में आके काम करेंगे तो वैल्यूएशन करेंगे उनके लिए। हम्म, और कॉस्टिंग वाइज तो आप देखो कि अगर यूएस का पर्सन है उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होगी, जो इंडियंस की इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी कॉस्टिंग लो होगी। इसलिए बहुत सारा यूरोपियन कंट्री से काम आउटसोर्स होकर इंडिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे वो काम काफी सस्ते रेट पे हो जाता है बेसिकली एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली आपका। बट उसमें भी हम जैसे देखते हैं कि जो बिग फोर्स हैं, जहाँ पर मोस्टली कंसल्टेशन चलता है, बट ये सब एमएनसीज है, राइट? क्या यहाँ पे इंडिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है जो बाहर का काम इंडिया में लेकर आ रही है? बहुत सारी कंपनी है, तो बिग फोर तो क्या बहुत बड़ी है, तो उससे नाम उनका हमें नोन रहता है। उसके अलावा बहुत सारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं। मतलब मैं अगर बात कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, जितना बिग फोर काम करती है उससे ज्यादा तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटसोर्सिंग का काम करते हैं इंडिया के अंदर, बताऊंगा। बिग फोर का इतना हाइप क्यों है? बिकॉज दे हैव द मल्टीपल डिसिप्लिनरी वर्क, इसमें मल्टीपल काम है उन पे करने के लिए, और उनकी मल्टीपल कंट्री से प्रेजेंस है उनकी बेसिकली, इस चक्कर में उनकी हाइप है। इसके अलावा मैं टॉप 20 सीए की बात करूं तो जितना वो काम करते हैं उतनी बिग फोर काम नहीं करती। जितनी बिग फोर की टर्नओवर है चारों फर्म की मिला के, मतलब उससे ज्यादा हमारी सीए हम की टॉप 20 सीए की टर्नओवर होगी, बताऊंगा आपको बेसिकली। तो हम ये इट्स अ फैक्ट। फैक्ट, यस इट इज अ फैक्ट। बिकॉज मैं भी आपसे जो भी इस प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करूंगा, आई नो कि दिस इज गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, सो आई विल ऑलवेज टेल यू ईच एंड एवरी फैक्चुअल थिंग बेसिकली। मैं कोई भी ब्लफ नहीं करूंगा बेसिकली आपको यहाँ पे। तो बहुत सारी इंडियन फर्म्स है जो बहुत अच्छा काम कर रही है नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, बट दे डोंट गेट सच काइंड ऑफ रिकॉग्निशन बिकॉज दे डोंट हैव ए मल्टीपल ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया एज वेल। वो इतने लेवल पे उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, या फिर इतना सॉलिड ब्रांडिंग नहीं है। जब भी किसी सीए की हम बात करते हैं, सो दे आर लुकिंग की जॉब करनी है बिग फोर में लग जाए, आर्टिकलशिप करनी है बिग फोर में मिल जाए, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे 3 चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर हम अभी 25 to 35 इयर्स की जनरेशन या फिर 35 से 45 इयर्स के जनरेशन की बात करते हैं, तो आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हो आजकल, और आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल रेशो क्या होना चाहिए इन तीनों के बीच में? बड़ी गुड क्वेश्चन। जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि जितना हम अर्न करते हैं कहीं ना कहीं उसके इक्वल टू या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं आज के डेट में। बिकॉज आज के डेट में क्या हो गया, डिजिटल ईरा होने के चक्कर में आपको लोन लेना और किसी से ईएमआई पे लेना बड़ा आसान हो गया है। आपको बैंक में जाके आपको क्यू में खड़ा लेना लोन लेने के लिए। आजकल तो ऑनलाइन ऑफर्स इतने आते हैं, फटाक से आप कोई भी गाड़ी लेनी है, कोई भी फोन लेना है, कोई भी वॉच लेनी है, कुछ भी ड्रेस तक आजकल ईएमआई पे ले सकते हो बेसिकली आप। तो आजकल चीजें बहुत कन्वीनियंट हो गई है। बट उससे क्या होता है, देखो हम ना उसकी हमें लगता था कि वो जीरो कॉस्ट ईएमआई है, बट कहने की उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है उस कॉस्ट को, ऐसे कुछ कॉस्ट का ही पार्ट बन चुका होता है वो बेसिकली वो। तो इसलिए मतलब हमें वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल कि हम जो चीज ले रहे हैं क्या एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट है, पहली चीज। दूसरी बात की व्हाई आई शुड टेक ऑन ईएमआई बेसिकली। तो फर्स्टली आई शुड दैट मच ऑफ सेविंग, मेरे पे इतना सेविंग होना चाहिए कि मैं उस चीज को अफोर्ड कर सकूं। कुछ चीजें हम अपने शौक के लिए लेते हैं, कई चीज की नीड होती है, तो पहले जो चीज की नीड है हम उसको एक्वायर करें, शौक के लिए चीजें कम लें, और ले तो वो चीज कभी ईएमआई पे ना लें बेसिकली। जो भी चीज हम शौक के लिए ले रहे हैं अपनी, ठीक है, उसको ईएमआई पे ना लेके हमें सरप्लस फंड से ले। तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना आप अर्न कर रहे हैं उसका एक अच्छा अमाउंट आपको सेव करना है बेसिकली अपने लिए, ठीक है। वो सेव करने के लिए भी आप पे कुछ गोल्स होने चाहिए कि सर मुझे इतना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है, आफ्टर 20 ईयर आई वांट टू बाय माय ओन होम, या मुझे कोई फॉरेन ट्रिप करना है। तो ऐसे गोल बना के उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, और ट्राई टू ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए। पीपीएफ का एग्जांपल लिया मैंने आपसे। पीपीएफ के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, उससे जब पैसा डाल तो सकते हैं लेकिन उसका विड्रॉल हम कर सकते हैं 15 साल के बाद। तो ऐसे एनपीएस है, वो 60 ईयर के बाद पैसा मिलेगा। तो वो क्या होता है, फिर उस पर निकालना मुश्किल है अगर, तो आप उस पैसे को वेस्ट नहीं करते कहीं ना कहीं। तो इसलिए एक अच्छी एडवाइस ये होती है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो इससे फिर आपके खर्चे भी कंट्रोल रहते हैं बेसिकली आप। तो ये बेस्ट पॉलिसी है कि आप एक अच्छी परसेंटेज सेव करें। देखो परसेंटेज हर आदमी के लिए अलग हो सकती है, उस परसेंटेज को फिक्स करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन है कि जितनी आपकी एज है उतने ग्राम प्रोटीन खा लो आप, ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है फाइनेंस के अंदर। ये तो क्या है, आपकी हैबिट के ऊपर है। कई लोग क्या करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं उसके 70 रुपए सेव कर लेते हैं, 30 रुपए खर्च करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं 110 रुपए खर्च कर देते हैं, 10 रुपए लोन लेके खर्च कर देते हैं। तो इट्स टोटली अप टू द हैबिट ऑफ द पर्सन कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है बेसिकली। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट ऑन सेविंग। आप जितना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करेंगे ना, आप देखेंगे आपका वेल्थ क्रिएशन उतना ज्यादा होगा लेटर डेट के ऊपर। तो आपको डे 1 से वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है, सेविंग्स को करके। तो आप देखेंगे आप मतलब एट द एंड जब आप रिटायरमेंट के आसपास होंगे, आपके अच्छा खासा कॉर्पस होगा,
अपनी रिटायर लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में क्या रिटायर लाइफ भी प्रीपोन होती जा रही है। कई लोग 70 ईयर में रिटायर करते थे, फिर 65 60, आज के डेट में लोग 50 55 के बाद आसपास दे ट्राई टू Now people are talking of early retirement Yes. also at 40. yes. Many people have a dream to get retirement at 40 because now they want to enjoy their life further. Yes. तो अगर आप टाइम से या जल्दी स्टार्ट करेंगे सेविंग करना, तो वो सरप्लस आपके पास होगा आपको अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर द इयर्स बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे प्रोफेशंस में एंटर कर गया है, Yes. जिसकी वजह से नाउ देयर इज अ थ्रेट कि हमें प्रोफेशनल्स की नीड नहीं होगी, एआई से काम हो जाएगा। जब हम टेक की बात कर रहे हैं या हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे एआई टेक ओवर कर चुका है। Yes. फाइनेंस फील्ड में या सीए वर्क में आप क्या फ्यूचर देखते हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो बात करते हैं एआई की। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एआई में पीछे नहीं है, आईसीआई, बिकॉज उसका नाम है आईसीएआई इज देयर बेसिकली। तो इस साल हमारे इंस्टीट्यूट ने एआई पे कमेटी बनाई है, एआई इन आईसीआई के नाम से बेसिकली। ओके। इंस्टीट्यूट भी काफी काम कर रहा है एआई को लेकर। अब बात करें जनरल मेंबर की, देखिए क्या है, यहाँ पे जितना काम है ना इंटेलेक्चुअल वर्क है बेसिकली। जो ऐसा काम है जो रिपीटेटिव नेचर का है, वो तो मानता हूँ एक टाइम पे आके एब्सोल्यूट हो जाएगा बेसिकली, वो गायब हो जाएगा। ओके। उसमें सी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसमें आप क्या क्या जैसे अकाउंटिंग है आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक कंपनी है उसने अपना ऐप बना रखा है, ठीक है, एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट देनी होती है। तो एम्प्लॉय ने क्या किया, एक बिल लिया, मैकडी में गया, उसने खाना खाया ऑफिस के टाइम पे, उसने बिल की फोटो खींची, तो उस फोटो खींचने से क्या हुआ, बिल कैप्चर हुआ, एज एन एविडेंस बन गया, उसमें उसने फिगर पंच करी और ऑटोमेटिकली ईआरपी में एंट्री हो गई आपकी एक्सपेंस की, और ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में मंथ एंड पे वो पैसे चलेगा एम्प्लॉय के अकाउंट पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड है। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल खत्म हो गया बेसिकली। अभी तो क्या होता है, वो वाउचर आएगा अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसको टैली में एंट्री करेगा, ईआरपी एंट्री करेगा, बाद में एक दूसरा सीए उसकी पेमेंट बनाएगा, उसकी पेमेंट होगी, तो सारा काम ऑटोमेटेड हो गया। तो जो ऐसा काम है जो रिपीटेड इन नेचर का है बेसिकली, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फ्यूचर के अंदर, वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की, आज के डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, मैंने अकाउंटिंग करी, उसी के बेस पे आपकी जीएसटी की रिटर्न तैयार हो गई और रिटर्न फाइल हो गई उसी के बेस पे। यस, टैली, ईआरपी, सैप, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑलरेडी आपको इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक फाइल हो जाएगी आपकी। तो वो वाला काम भी सीए के पास से चला जाएगा, बिकॉज वो काम सॉफ्टवेयर कर सकता है उसको। लेकिन देखो, आप देखो सीए का एक यूएसपी है आपका, जो इंटेलिजेंस लेवल सीए के पास है वो मशीनरी के पास नहीं, क्योंकि बाय चेंजिंग ऑफ टाइम, जैसे टाइम चेंज होता चला जाएगा बेसिकली, वैसे हमारे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत डायनेमिक है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनी एक्ट है, ये सब बहुत डायनेमिक है, हर रोज लेवल पे नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं उसके ऊपर। तो वहां कहीं ना कहीं सीए की रिक्वायरमेंट है। कैसे, पहले सीए उसको समझेगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको उस तरह से मॉडिफाई करेगा, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो वहां पे सीए का रोल आ गया बेसिकली। तो अब उसकी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल है उनको ऑडिट करना है, वहां भी कहीं ना सीए का रोल आ गया। एआई के बेस पे तो उसको ऑडिट कर नहीं सकते बेसिकली, कि कंप्यूटर के रोबोट तो उसको ऑडिट कर नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट उसके बेस पे चेक कर रहा है कि उसका रेवेन्यू का लॉस तो नहीं है। जैसे क्या होता है, जैसे एडवोकेट होते हैं ना, दे आर द बेसिकली ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे आर द पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, वो एक नेशन बिल्डिंग के पार्टनर है। तो इनकी भी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें गवर्नमेंट के स्टेक को कैसे इंटैक्ट रखना है, जिससे गवर्नमेंट का लॉस ना हो। जो भी ये ऑडिट्स हैं, हम ऑडिट में क्या करते हैं, हम जैसे टैक्स ऑडिट करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्लाइंट ने कोई भी टैक्स ऑडिट में ऐसा लूप पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे कि टैक्स की क्लाइंट टैक्स पे ना कर रहा हो, जिसको तो टैक्स बनता हो उसके ऊपर, तो वही हमारी ड्यूटी चेक करना। तो वी आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, हम एक तरह से गवर्नमेंट के एक्सटेंडेड हैंड है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो वाला काम सॉफ्टवेयर या एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई इज मेंट टू आवर हेल्प, हमारे काम को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए किया गया है उस सॉफ्टवेयर को, एआई को डेवलप। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, बिल्कुल ना सोचे कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम करने के लिए। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। यस, awesome. ऑडिट्स की जब हम बात करते हैं, चाहे वो जनरल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सीएस के लिए हमेशा एक फैसिनेटिंग फील्ड रहता है ना। सबका एक ड्रीम होता है ना, आई विल गो एंड आई विल डू द ऑडिट ऑफ अ कंपनी या कुछ। सीए बनते ही आप ऑडिट्स करना स्टार्ट करते हो या उसमें कुछ टाइम लगता है? हाउ डज इट हैपन? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी नए लोग हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो डेफिनेटली हमें देख पाएंगे टॉक शो में। जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, जितने नए सीए हैं, कि कैसे उनको हम हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट की। मैंने अपने पहले भी एग्जाम्पल में आपसे इस आज की टॉक शो में डिस्कस किया था कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डे वन पे जो उसकी पावर है, वो एक 40 ईयर ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर है। जहां वो साइन कर सकता है 40 ईयर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे ये सीवी साइन कर सकता है, उसकी अलग से
पैरामीटर नहीं है कि नहीं इतना एक्सपीरियंस जरूरी है आपको, Okay. एनीवन कैन साइन। तो एक तो बात है कि बात करते हैं स्टैच्यूरिटी की, टैक्सोरिटी की, वो डे 1 पे वो साइन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करे साइन करे बेसिकली। अब कुछ ऐसे गवर्नमेंट के काम है बेसिकली जहां पे कहीं ना कहीं आपकी एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। Okay. फॉर एग्जाम्पल बात करते हो बैंक ऑडिट की, जो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं बेसिकली दे आर ऑल्सो ऑथराइज टू डू बैंक ऑडिट बेसिकली। तो बैंक के दो तरह के ऑडिट होते हैं, कंकरेंट ऑडिट होता है और स्टैच्यूटरी होता है। तो स्टैच्यूटरी होने के लिए बैंक एक एम्पैनल का प्रोसीजर है, जो आईसीआई है वो एक एमईएफ का फॉर्म निकालता है, मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म, उसके थ्रू बैंक ऑडिट अलॉट होते हैं। तो वहां पे आरबीआई ने कुछ एक पैरामीटर बना रखा है कि इतना एक्सपीरियंस होगा आपको, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो बैंक ऑडिट करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट के अंदर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो वहां पे दे वांट कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो ज्यादा अच्छे से, यस हाँ, और इट इज सीरियसली वेरी मोर सीरियस बिजनेस बेसिकली। तो उसको ज्यादा से उन्होंने फिर एक पैरामीटर लगा रखा है। ऐसी सीएजी की जो एम्पावरमेंट होती है, तो बोलते हैं एटलीस्ट आपके हमें एक एफसी जरूरी है, फेलो मतलब उसको 5 साल हो गए सीईओ बने हुए, तो उसके बाद ही आपको सीएजी से काम अलॉट होता है। Now we move to the most interesting segment, which is rapid fire. So, are you ready for it? Yes, I am ready. On the following parameters, मैं आपको जो parameters दूंगी, on the following parameters, you have to tell me what would you prefer, a job or a private practice? Income. Job. Exposure of work. Practice. Work-life balance. Practice. Career stability. Practice. A golden advice you got years back. I got advice कि hard work has no substitute, and second is success has no shortcuts. So this thing I also followed कि आपको जो भी अचीव करना है वो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों से करना है। One reason why people should not opt for CA as a career. अगर उसको पावर चाहिए बेसिकली, तो सीए में पावर का कोई रोल नहीं है। That time he has to go for UPSC, civil services, or he had to go for politics. 3 famous personalities you would recommend finance professional to know about. Deepak Parekh ji. Deepak Parekh ji is belong to SDFC and he has done a lots of thing for the SDFC. T Manoran. T Manoran sir is basically he also got a पद्म भूषण अवार्ड। जो 70 का स्कैंडल हुआ था उसको जो रीमेक किया था वो टी मनोहर सर ने किया था। राकेश झुंझुनवाला, इंडियन वॉरेन बफेट बेसिकली। 3 countries you see have a bright future for finance professionals. If we name them, so first is US. US has so much opportunity for Indian chartered accountants and for finance people. Thereafter it come to London. Thereafter it come to Australia. One change you recommend should be there in the current taxation policies or the taxation system. So if I talk about income tax, from few years back we have a new tax regime. So in this new tax regime, all deduction exemption are nil. Flat whatever income you have to pay tax as per slab on that basically. So I want this, if this is become mandatory and all scheme should be stopped and only in new scheme without any exemption deduction, if we have to pay tax, that will lead to pay maximum tax by the maximum participant, maximum taxpayer. People will not do any to save their tax. So it is for income tax. If we talk about GST, so right now in GST we have a multiple rate of tax. For example, 1, 5, 12, 18, 28. I want a single tax rate which will help people to determine their tax liability, and people, those who want to do tax evasion, this will also help to reduce tax evasion. I think this was one of the most informative rapid fires so far we have had. Here we come to the last segment of today's talk show, which is gift from the guest. And I definitely want to know from you, what gift have you got for us? So friends, मैं आपके जो गिफ्ट लेके आया हूँ वो मैं अपनी एडवाइस गिफ्ट लेके आया हूँ, बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपने आपको एडवाइस गिफ्ट कर सकता हूँ। कुछ चीज जो मैंने पिछले 20 साल में सीखी है अपनी लाइफ के अंदर, वो मैं आपको अपनी एडवाइस की फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया के अंदर वो बहुत अंडर रेटेड है बेसिकली, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। एक फैमिली के अंदर किसी भी एक फैमिली मेंबर को एक क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो समटाइम इट हैपन कि पूरी फैमिली का पूरा फाइनेंस उस क्रिटिकल इलनेस को ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है। समटाइम बहुत लोग अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं उसके लिए। तो अगर आपने प्रॉपर्ली हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी होगी तो इस तरह की किसी भी इलनेस को प्रॉपर्ली टेक केयर किया जा सकता है बेसिकली। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस मेरी तरफ से आपको एडवाइजेबल है। सेकंड पार्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मींस कि इन केस आपकी डेथ होती है अगर, तो आपकी जितनी भी लायबिलिटी है आपकी फैमिली, आपकी जो फैमिली की टूवर्ड्स लायबिलिटी है, उन सबको मिट आउट करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। प्योर टर्म इंश्योरेंस लेनी है आपको, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेना आपको।
टर्म इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी डेथ होती है तभी आपकी फैमिली को, नॉमिनी को पैसा मिलता है। तो इसमें जितनी जल्दी आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस उतना बेस्ट है। मतलब 18-19 ईयर्स में अगर टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे आप, तो आप देखेंगे बहुत कम प्रीमियम अमाउंट पे आपको एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी मिल जाएगी। तो 70 या 75 ईयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं कि इन बिटवीन जो भी आपकी लायबिलिटी होगी सब उस पॉलिसी मिट आउट हो जाएगी इनकेस आपकी डेथ हो जाती है। तो दो ये मेजर चीजें हैं, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद से आपको बताना चाहूंगा कि 3 चीजें जहां पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फंड है आपका म्यूचुअल फंड, क्योंकि आज की डेट में जितना भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मिनिमम आप 500 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ बेसिकली। तो जो भी आप अर्न करते हैं कुछ ना कुछ पार्ट आप सिर्फ के थ्रू आप शेयर मार्केट में जरूर लगाएं, जिससे कि आप देखेंगे कि वो उस पैसे की अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। उसके अलावा हमारे एक ऑप्शन है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस पर एनम हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें जिसके इंटरेस्ट में कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना होता, उसका टैक्स इंटरेस्ट फ्री होता है। तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट थर्ड आपकी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आप 60 ईयर्स के होंगे तो आपको एक अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है आपकी रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करने के लिए। अभी हम वी आर हेल्दी, वी आर अर्निंग गुड, बट एट द एज ऑफ 60 व्हेन वी नीड मनी, तो जो ये पेंशन है आपको वही आपको हेल्प करेगी। देखो जो लोग, अब गवर्नमेंट ने भी 2004 के बाद पेंशन देना बंद कर दिया है, तो सब लोग कहीं ना कहीं एनपीएस के थ्रू ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो जितने भी लोग अदर देन जॉब भी हैं, अपना प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं पेंशन प्लान जरूर लेना चाहिए अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। ये 5 एडवाइस थी फ्रेंड मेरी तरफ से आप सबके लिए, जो आप जरूर फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपको फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज एडवाइस। आई मीन एक गिफ्ट मांगा था, हमें 5 गिफ्ट मिल गए। हाँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड एंड बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, एक आई ओपनर था। थैंक यू सो मच सैरी फॉर इनवाइटिंग मी। एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट है इस टॉक शो के रिगार्डिंग तो आपके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, वी विल हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेश्चन देयर आल्सो। थैंक यू सो मच।